Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss different types of automation strategies that can be implemented in manufacturing scenario. There are three in number: fixed automation, programmable automation, and flexible automation. So normally हम इसको technologies कहते हैं, but they are basically strategies. चाहे वो fixed हो, programmable हो या flexible automation हो. They can be applied to any system, but how good you will be able to apply them, those strategies are basically important. So they are strategies. Fixed automation is one of the strategy that you can adopt, that you can use for some scenario. Programmable, flexible. अब ये किन किन सिनारियोज में आप यूज़ कर सकते हैं? अगेन फॉर दैट you must be able to identify the type of production setup. ये जो production setup है वो किस type का है? What is the scenario of production? And you know that there are basically three different types of production scenarios that can be used in manufacturing setup. और वो सिनारियोज़ जो है वो वेल नोन सिनारियोज़ है, आप सबको पता होगा. मास प्रोडक्शन हम कहते हैं, बैच प्रोडक्शन हम कहते हैं, और जॉब शॉप प्रोडक्शन जैसे हम कहते हैं. So these are the three basically different types of production scenarios that you can adopt for a factory. And for each scenario, then for sure you will be having some specific strategy. और वो strategy क्या होगी, that will depend upon the type of processes, the type of equipments that will be used, and the type of sequences that will be used for that system. So these strategies are basically with reference to those scenarios. कि scenario क्या है, what is the scenario, and what may be or what might be the best possible strategy that you can adopt for that particular scenario. So let us move on कि किस सिनारियो में जो है वो कौन सी ऑटोमेशन स्ट्रेटजी जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. So let us start with the first strategy, which is fixed type of automation. Fixed type of automation नाम से ही पता चल रहा है कि fixed processes या fixed sequences के लिए जो strategy आप use करेंगे, that will be fixed type of automation. Fixed automation is also known as hard automation. Let me first just read the statements that what it is, and then later on we will try to explain. So this is a book statement. Fixed automation refers to the use of special purpose equipment. ये आपने ज़हन में रखना होगा. Fixed automation refers to the use of special purpose equipment to automate a fixed sequence of processing or assembly operation. So scenario जो है वो वही दो बेसिक हो सकती है, या तो assembly operations होंगे या कोई processing operations होंगे if it is a production line. So ये तो known है कि it may be a processing operation or some assembly operation if it is an assembly setup or production setup. ये दो चीज़ें जो है इस पे आपने emphasis रखना होगा. Fixed automation refers to the use of special purpose equipment to automate a fixed sequence of processing या assembly operation जो भी है. Fixed sequence जो है वो किस सिनारियो में आपको मिलता है.
For that, you will then look for the scenario. Scenarios are of three types: job shop production, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन. इन तीनों को आप कंपेयर करते हैं तो फिक्स सीक्वेंस जो है वो मास प्रोडक्शन में ही आपको मिलेगा, बिकॉज इन मास टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज only one type of product is usually manufactured, and normally throughout the lifetime of that industry the same product will be produced. In for example bulb industry को आप ले, so फेरोज सन्स को अगर आप देखें, so they are manufacturing tube lights and bulbs, maybe for the last 10 or 15 years, and maybe for the next 20 or 30 years they will be producing the same bulbs and tube lights. शेप्स जो है, यानी जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो हो सकती है बल्ब्स में, ट्यूब लाइट्स में, लेकिन जो बेसिक प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है दे रिमेन द सेम, यानी सीक्वेंस जो है वो सेम ही होता है. फैन इंडस्ट्री को अगर आप ले, सो फैन शेप्स में भी डिफरेंट, डायमेंशंस में भी डिफरेंट, बट द बेसिक थीम ऑफ प्रोसेसेस, द बेसिक sequence of process and operations will remain the same throughout the lifetime of that industries. So mass production जो है उसमें आपका sequence जो है वो sequence of processes that will remain fixed. So this means that fixed type of automation बाज़ार तो यही नज़र आ रहा है कि it is or it will be the most suitable strategy that will be used or that can be used for mass type of production setups. So let us further discuss that. So fixed automation refers to the use of special purpose equipment to automate a fixed sequence of processing or assembly operations. Each of the operation in the sequence normally simple ही होता है, because हर एक equipment जो है वो एक specific task जो है वो complete करता है, and throughout the lifetime that equipment will be performing the same task. This is what we call as special purpose equipment. Special purpose equipment are also known as dedicated equipment. उसको dedicated equipment भी कहा जाता है, उसको engineered equipment भी कहा जाता है. तो dedicated equipment या engineered equipment or special purpose equipments are those type of equipments which are reserved for performing a specific type of process or operation within the system. Now, this refers to the categorization of the equipment. Equipment जो है basically दो categories में आप categorize कर सकते हैं. One is general type or general purpose equipment. Another is special purpose equipment. General purpose equipment like for example lathe machine. फर्स्ट ईयर में जो आपने प्रैक्टिकल किया था लेथ मशीन पे, दे वर जनरल पर्पस लेथ मशीन, जनरल पर्पस इक्विपमेंट है, यानी द लेथ मशीन्स दैट यू वर्कड ऑन ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिस, वो जनरल पर्पस इक्विपमेंट है. दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टर्निंग ऑपरेशन, यानी उस पर आप प्लेन टर्निंग भी कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म द taper turning operation, knurling operation, thread cutting operation, grooving भी आप कर सकते हैं. So it is a general purpose equipment in which you can perform any turning process. Another type of lathe machine can be a dedicated lathe machine or special purpose lathe machine. For example, if you are working in some factory और वहाँ पे एक टर्निंग प्रोसेस है, लेट अस से सिर्फ प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन जो है उस वर्क पीस पे आप परफॉर्म कर रहे हैं. सो यू कैन इंस्टॉल डेडिकेटेड इक्विपमेंट विच विल ओनली परफॉर्म द प्लेन टर्निंग. बाकी आपको ज़रूरत ही नहीं है टेपर टर्निंग की या नर्लिंग प्रोसेस की या थ्रेड कटिंग की. तो यू कैन मेक अ सिंपल लेथ मशीन which will have only one slide and that will be a longitudinal slide, और उसकी मूवमेंट जो है वो उसका मैकेनिज़्म जो है वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं.
सो नॉर्मली जो डेडिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं, जो स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट होते हैं, दे आर सिंपलर इन कंस्ट्रक्शंस. दे हैव मिनिमम नंबर ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रॉस स्लाइड या कैरेज मैकेनिज्म ये सब आप हटा दें एक लेथ मशीन से, तो you can significantly reduce the wear and tear, the frictions, the power that will be needed to drive the motors. So it will consume less energies. It will require less maintenance. उसमें frictional losses आपकी कम होगी. It will be easy to handle. So normally जो dedicated equipment होते हैं, they are uh, very simpler in constructions, and they have less number of mechanical components. Less number of mechanical components means that it will consume less energies, less powers. सो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट पे बहुत ही कम आएगा एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पज इक्विपमेंट. सो इन मास सिनारियो, normally you know each and every activity of every machine कि यही product बनेगा, and these will be the operations which will be performed by the machine. So normally mass setup में जो equipments use होते हैं, most of those equipments are dedicated equipments. लेकिन डेडिकेटेड इक्विपमेंट को प्राइस वाइज जब आप कंपेयर करते हैं एक जनरल पर्पस इक्विपमेंट से, सो ऑल दो कि उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होंगे, उसमें गियर ट्रेन्स कम होंगे, उसमें स्लाइड्स कम होंगे, बट स्टिल इट विल बी कॉस्टलियर एज कंपेयर टू जनरल पर्पस इक्विपमेंट. वाई? बिकॉज फॉर अ मशीन टूल फैक्ट्री, यानी वो फैक्ट्री जो कि मशीन्स बनाती है, दे नॉर्मली मास टाइप प्रोडक्शन वो करते करेंगे, बट दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग जनरल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, and your order will be a special order. So for example, if you want to order or want to manufacture a dedicated equipment, so for the machine tool factory it is a special order. So they will have to stop their actual production, और स्पेसिफिकली आपके लिए जो डेडिकेटेड इक्विपमेंट है, जो मशीन है वो बनाएंगे, तो दे विल हैव टू स्टॉप देयर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो उस वजह से नॉर्मली जो मशीन टूल फैक्ट्रीज है, दे चार्ज मोर टू मेक स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट्स. बट ओवर द लॉन्गर रन्स, चूँकि वही इक्विपमेंट जो है वो आपने for maybe for 30 years or for 40 years you will be use the same machine for your scenario. So वो प्राइस डिफरेंस जो है वो लेवल ऑफ हो जाता है as far as the production activities are concerned. So it is not a big issue of using the special purpose equipment for mass type of scenarios. सो फिक्स टाइप ऑफ ऑटोमेशन का यही थीम है कि इसमें मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो होंगे दैट विल बी स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट्स, एंड स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन अ सिनेरियो in which the sequence of processes remains fixed. And sequence of processes normally आपका fix होता है mass type of production में. Each of the operation in the sequence is usually simple होगा. It is relatively difficult to accommodate changes in the product design. तो ज़ाहिर है अगर आप डेडिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन चेंजेस जो है वो बहुत ही रेयर आपको मिलती है मास प्रोडक्ट्स में. यानी बल्ब्स की आप देखें, या फ़ैन इंडस्ट्री को अगर आप देखें, या टेलीविजन्स को देखें, कोई भी मास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जो डिज़ाइन चेंजेस है वो 2-3 साल बाद ही कंप्लीट डिज़ाइन चेंजेस हो. कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिल सकती है, यानी यू कैन चेंज द डायमेंशंस, द शेप्स, बट द प्रोसेसेस रिमेंस द सेम. इसको हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं. एग्जांपल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील रोलिंग, पेपर प्रोडक्ट, जितने भी मास मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं वो फिक्स्ड ऑटोमेशन की स्ट्रेटजी हो सकती है, और उसको हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं. ठीक है ना. सो फिक्स्ड ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफिकली आप ये कॉमन एग्जांपल है, आप दे सकते हैं. So this is the same figure that I showed you
in the last video, सॉरी, कि ऑपरेशन जो है वो फिक्स ही होंगे, ठीक है ना. द प्रोडक्ट नॉर्मली मूव्स फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन और एवरी स्टेशन परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्टिविटी, so it will remain the same for this particular product. So, in general, now we can say that a manufacturing system in which the sequence of process या assembly operation जो भी हो, if it is fixed by the equipment configuration. Equipment configuration means whatever is the sequence of the equipments, that will be the sequence of the product. जो इक्विपमेंट का सीक्वेंस होगा वही आपका प्रोडक्ट का ही सीक्वेंस होता है. टिपिकल फीचर्स इसमें यही है कि इट इज़ suited to high production quantities. High production quantities means mass type of productions, and usually one type of product is produced, is manufactured, and they are manufactured in bulks. तो अगर फॉर एग्जांपल आप बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बैच प्रोडक्शन में व्हेन यू विल स्विच फ्रॉम one product type to another product type, so definitely you will have to stop the system. आपने सिस्टम को स्टॉप करना होगा. You will have to reconfigure the system for the next product. Reconfiguration का मतलब ये है कि you will have to change the sequencing scheme, you will have to change the tooling scheme. tool different होंगे, sequences different होंगे, जो jigs and fixtures हैं वो different होंगे. सो आपने हार्डवेयर में जो है वो चेंजेस करना होगी. तो आपने प्रोडक्शन बेसिकली स्टॉप करना होगी, एंड देन आफ्टर द चेंज ओवर देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोडक्शन विंडो. सो ये चेंज जो है, ये चेंज ओवर, ये सेटअप टाइम जो है फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स नॉर्मली इट टेक्स वीक्स, ठीक है ना. तो स्पेसिफिकली अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो it takes 21 to 25 days for change over. अगर आपने एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट पे शिफ्ट करना हो, तो अगर एक महीने में आप 20-21 दिन, या अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन विंडो जो है वो 3 मंथ्स की है एक प्रोडक्ट के लिए, और उस 3 मंथ्स में आप तकरीबन एक महीना जो है वो सेटअप वर्क पे लगा दें, तो आपके पास 2 महीने रह जाते हैं. तो प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू mass type of production, because in mass scenario you do not need the changeover times. Up continuously the industry will producing the same type of product throughout the year. So it is most suited for high production setups, for high production quantities means mass type of productions. As I said कि चूँकि कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है मास टाइप ऑफ प्रोडक्शन में, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पज इक्विपमेंट, बट ओवर द लॉन्गर रन्स दिस इज़ नॉट द डिसएडवांटेज, ये लेवल ऑफ हो जाता है. डेफिनेटली प्रोडक्शन रेट्स विल बी हायर व्हेन यू कंपेयर fixed automation to some other strategy. The only disadvantage which is associated with mass type of production or fixed automation is that it is relatively inflexible. यानी अगर प्रोडक्ट वेराइटीज़ की आप बात करते हैं, प्रोडक्ट वेरिएशन की आप बात करते हैं, तो वी इट कैन नॉट एक्सेप्ट द हार्ड प्रोडक्ट वेराइटीज़. उसके लिए आपने फिर पूरा का पूरा हार्डवेयर सेटअप जो है वो चेंज करना होगा, विच इज़ नॉट सूटेबल. So here are some of the features of fixed type of automation, that you have low production cost and high volumes. Low production cost in the sense that significantly you can reduce the manufacturing cost with the use of you can say the dedicated equipment. And on the other hand, next important point is that as the sequence remains fixed, so you can use the low level automation strategy, जो एक लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ
ऑटोमेशन पे कि आपके पास ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यू कैन हैव हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन जिसे आप एक्सटेंडेड ऑटोमेशन कहते हैं, और आपको पास लो कॉस्ट ऑटोमेशन होती है. सो यू कैन यूज standardized automatic equipment basically to automate the whole production scenario if it is mass type of production. So लो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी आपकी, और वॉल्यूम्स जो है प्रोडक्ट्स की वो हाई होती है, बट विद मिनिमल वेराइटी. लेकिन एज आई सेड कि सीक्वेंस जो है वो चेंज ही होता है, और मास प्रोडक्शन में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है. सो नॉर्मली वेरिएशन जो है अमंग द प्रोडक्ट्स आपको बहुत कम मिलती है. जो चेंज ओवर कास्ट्स है, जो वेराइटीज़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो चेंज ओवर्स की तरफ आप जो हार्डवेयर चेंजेस हैं उसकी तरफ आपने जाना होगा, विच विल कॉस्ट यू मोर. सो यू हैव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई वॉल्यूम्स बट विद मिनिमल वेराइटी. और अगर आपने चेंजेस की तरफ जाना होगा तो डेफिनेटली दे विल बी हाई. इसको हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं. हार्ड ऑटोमेशन इज़ बेसिकली ऑटोमेशन फॉर मास प्रोडक्शन, और अगर मास प्रोडक्शन है तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स. हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं फॉर कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट, बट अगेन इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज. एज आई सेड कि जब आप यानी इंडस्ट्री लाइफ के रेफरेंस से देखते हैं तो इट इज़ लेवल्ड ऑफ. प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है नॉर्मली स्टेबल ही होता है मास सिनारियो में. सो यू विल फाइंड वेरी रेयर चेंजेस, और वो चेंजेस भी कॉस्मेटिक लेवल तक ही आपको ज़्यादातर मिलेंगी. 90% प्रोसेसेस जो है दे विल रिमेन द सेम. एग्जांपल में असेंबली लाइन, ट्रांसफर लाइन आप दे सकते हैं. एडवांटेजेस की अगर आप बात करते हैं तो डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स आपके पास होते हैं. सो इक्विपमेंट्स आर फाइन ट्यून्ड टू एप्लीकेशंस. डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका साइकिल टाइम जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है ना, बिकॉज द सीक्वेंस इज़ फिक्स्ड, मैकेनिज़म्स आर सिंपलर, सो मशीनिंग टाइम जो है आपके कम से कम होते हैं. यू हैव इनफ्रीक्वेंट सेटअप्स. ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की पॉलिसी जो है इस सिनारियों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा सिंपलर होगी. यानी यू अ सिंपल कन्वेयर बेल्ट कैन बी automated through the use of simple sensors and actuators, with the help of which you will get fast and efficient movement of the parts. वर्क इन प्रोसेस जो है वो आपका लोअर लेवल पे ही रहेगा, यानी मिड रेंज में रहेगा. वर्क इन प्रोसेस पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा आपको बता देता हूँ कि वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस बाज़ बुक्स में लिखा होगा. वर्क इन प्रोसेस आर दोज वर्क पीसेस which will be present within the factory during the run time, during the production time. So any workpiece that resides within the system during the production time will be considered as the work in process. For example, if there is a workpiece which is on the machine and it is processing, it is work in process. अगर वो लोडिंग और अनलोडिंग के फेज में हो, if it is on the robotic arm, it will be considered as the work in process. If it is on the conveyor belt, it will be work in process. If it is waiting for certain machine, it will be considered as the work in process. So as long the work part is within the factory, it may affect the performance of some other workpiece. ठीक है ना, उसको ब्लॉक कर सकता है. तो अगर एक वर्क पीस एक फैक्ट्री में है तो वो किसी दूसरे वर्क पीस की मूवमेंट को इफेक्ट कर सकता है. सो द वर्क इन प्रोसेस ये भी एक स्टैंडर्ड है. इट शुड बी इन सर्टन रेंज. ना तो बहुत ज़्यादा वर्क इन प्रोसेस होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा वर्क पीसेस होंगे तो ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा आएगी. ये कम भी नहीं होने चाहिए. इफ़ द वर्क इन प्रोसेस आर एट द लोअर लेवल,
सो देन द मशीन विल वेट फॉर द वर्क पीसेस, यानी मशीन जो है वो अवेलेबल होगा, पार्ट्स आपके पास नहीं होंगे. सो देयर इज़ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, उसका अपना फार्मूलेशन है, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. बट ड्यूरिंग द डिज़ाइन द वर्क इन प्रोसेस इज़ आल्सो कैलकुलेटेड, कि कितना जो है, तो उसके लिए फिर दो रेंजेस होते हैं, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. द वर्क इन प्रोसेस शुड बी विद इन दोज टू रेंजेस. सो इन केस ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन, ऑल द ऑपरेशंस आर फिक्स्ड, सीक्वेंस जो है वो फिक्स्ड होता है, कोई चेंज और आपके पास नहीं होता है. तो जो वर्क इन प्रोसेस है दैट इज़ नॉर्मली लेवल्ड, वो मिड रेंज में ही रहती है आपके पास. एंड द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज़ दैट कि ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, ये चेंजेस जो है वो आप आसानी से नहीं कर सकते. Another type of automation is programmable automation. Programmable automation को soft automation भी कहा जाता है. Let me also first read the paragraphs. ये book definition है. In programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of operations. यानी नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन. सो इसके लिए जो इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे वो प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट ही होगा. और प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट मींस के जो इक्विपमेंट है इट इज़ डिज़ाइन विद द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी जब आप प्रोग्राम चेंज करेंगे तो आप ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं. सो ऑपरेशनल लेवल चेंजेस के लिए जो ऑटोमेशन स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं दैट इज़ द यूज़ ऑफ CNC मशीन्स. वो CNC इक्विपमेंट्स है, प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट है, उसकी मदद से आप ऑपरेशंस का सीक्वेंस जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं. यानी फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ CNC मशीन, तो लेथ मशीन है लेट अस से, और उसमें एक प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इट विल बी परफॉर्मिंग द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल पहले प्लेन टर्निंग है, फिर टेपर है, फिर ड्रिलिंग का ऑपरेशन है. दैट विल बी द सीक्वेंस. ड्यूरिंग द रन टाइम you can load another program and you can instruct the machine that इस पार्ट के बाद जो है ये प्रोग्राम आपने रन करना है. सो मे बी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन दैट प्रोग्राम इज डिफरेंट. तो वही सीक्वेंस जो है वो फिर फॉलो होगा मशीन का. तो मशीन लेवल पे आप जो है वो ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने प्रोसेसेस का सीक्वेंस चेंज करना हो तो वो फिर आप सेल लेवल पे करते हैं, ठीक है ना. सो ये इंडिविजुअल इक्विपमेंट की जब आप बात करते हैं तो वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है. सो in programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of operations to accommodate different product configurations. Operation जो है, the operation sequence is controlled by a program normally. और प्रोग्राम क्या होता है, वो आपका जो जी कोड इंस्ट्रक्शंस होंगे वही आपका प्रोग्राम होगा. न्यू प्रोग्राम्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड इट कैन बी एंटर्ड इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स. ये जो है न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड एंड एंटर्ड, ये रन टाइम की बात हो रही है. सो इफ़ यू हैव एन इक्विपमेंट एंड इफ़ दैट इक्विपमेंट इज कैपेबल ऑफ accepting the changes within the existing program, or if it is capable of recording a new program during the run time, तो वो फिर प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट होगा. सो CNC मशीन को रन टाइम में आप एक दूसरा प्रोग्राम जो है उसके ऊपर आसानी से लोड कर सकते हैं. सो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन या सॉफ्ट ऑटोमेशन की जब आप बात करते हैं तो उसमें we talk about the individual equipments, that if you have equipments and if those equipments can be programmed individually, so उसका मतलब ये होगा कि आप जो operation sequence है during the run time you will be able to change the sequence of operation. That is known as programmable automation. Overall अब आप ये कह सकते हैं कि a manufacturing system which will be designed with the capability to change the sequence of operations to accommodate different product configurations. यानी for example, दो या तीन प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बैच सिनेरियो में, मास में तो हो नहीं सकता, मास में एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा. सो नॉर्मली जो प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट्स है दे
are again not suitable to be used in mass type of production. So mass type of production में simple automated machine आप यूज़ कर सकते हैं. CNC machines का यूज़ जो है वो डिफेंडेबल नहीं है, क्योंकि आपको प्रोग्राम चाहिए. आपका एक ही प्रोग्राम होगा जो कि बार बार रन होगा. और CNC मशीन की फिजिबिलिटी ही यही है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स चेंज करना चाहें, यानी 2 या 3 पार्ट्स आप बनाना चाहें, तो यू कैन ईजिली डू दैट पार्टिकुलर थिंग्स. टिपिकल फीचर्स यही हैं कि इसमें जनरल पर्पज़ इक्विपमेंट ज़ाहिर है, यानी जब आप एक मशीन यूज़ करते हैं डिफरेंट सिनारियोज़ के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो फिर जनरल पर्पज़ इक्विपमेंट ही होगा. सो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पज़ इक्विपमेंट जो है इट इज़ चीपर देन डेडिकेटेड इक्विपमेंट. बट हेयर you are not only using a general purpose equipment, but you are using a general purpose equipment that will be controlled by a computer software, which is a CNC technology. So comparing to a normal equipment, a CNC equipment is expensive. You will get lower production rates comparing to the fixed type of automation. क्योंकि fixed type of automation जो है वो dedicated equipment है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. और यहाँ पे चूँकि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए एक सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो रिलेटिवली जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्शन रेट जो है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का कम ही होगा फिक्स्ड ऑटोमेशन से. बट इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द वेरिएशंस and changes in the product configuration. So product variation अगर आप करते हैं, product changes अगर आप करते हैं, तो it is more flexible and it is more suitable for batch type of production. अब आपके पास दो और टाइप्स बचती हैं. एक तो मास प्रोडक्शन है. मास प्रोडक्शन में आप प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यूज़ ही नहीं कर सकते, बिकॉज देयर विल बी नो यूज़. यू कैन यूज़, यानी आप कह सकते हैं आप CNC मशीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग CNC मशीन्स फॉर मास सिनारियो. सो अदर टू सिनारियोज जो आपके पास है, एक आपके पास बैच प्रोडक्शन है, एक आपके पास जो है वो जॉब शॉप प्रोडक्शन है. तो अब उनको आपने देखना होगा. बैच प्रोडक्शन ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर एक फैक्ट्री बनाती है तो ठीक है, वी कैन यूज़ दैट. सो इट इज़ सूटेबल फॉर बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन. जॉब शॉप को अगर आप देखें तो जॉब शॉप में भी यही सिनारियो है कि ईच न्यू प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी इन द जॉब शॉप सिनारियो एज वेल. ये फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा सूटेबल जो है वो बैच प्रोडक्शन के लिए है या जॉब शॉप प्रोडक्शन के लिए है. बट नाउ एट दिस टाइम वी कैन से दैट इट इज़ मोर सूटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन और जॉब शॉप प्रोडक्शन. फिजिकल सेटअप एंड पार्ट प्रोग्राम मस्ट बी चेंज बिटवीन जॉब्स बैचेस. अब अगर आप सिर्फ, यानी आपका इक्विपमेंट जो है वो प्रोग्रामेबल है, इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, सो द इक्विपमेंट्स विल हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंजेस, लेकिन आपके सिस्टम में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो इंटीग्रेट आपने नहीं किया होगा. और जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो फिर आपकी थर्ड स्ट्रेटजी बन जाती है जिसको आप फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं. ठीक है ना. सो एक आपका है फिक्स्ड ऑटोमेशन. नेक्स्ट फिर एडवांस लेवल उसका आ जाएगा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और फिर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एडवांस लेवल जो होगा वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होगा. तो अगर यही प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट्स आप आपस में इंटीग्रेट कर लें और यानी जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उसके साथ भी इंटीग्रेट कर ले, तो वो फिर आपका FMS बन जाता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन बन जाती है. ठीक है ना. एज फॉर एज द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, अगर आपने यानी फॉर एग्जांपल हार्ड वेरिएशन है, यानी हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी है, तो हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी में मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस जो है वो चेंज होगा, प्रोसेसेस का सीक्वेंस.
तो अगर प्रोसेसेस का सीक्वेंस चेंज होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का सीक्वेंस है वो आपने चेंज करना होगा। ऑपरेशन चीज, अगर ऑपरेशन चेंज है, यानी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आप चेंज करते हैं, तो उसमें फिर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का सीक्वेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। मशीन के अंदर आप सिर्फ प्रोग्राम जो है वो चेंज करेंगे, लेकिन प्रोसेस वेरिएशन अगर है दो पार्ट्स में, तो उसमें फिर आपने जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उसका सीक्वेंस आपने चेंज करना होगा। तो अगर वो आपने चेंज करना होगा तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो फिर ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी। If it is soft variation, then it will be the best one. So बहरहाल फिजिकल सेटअप जो है वो आपने चेंज करना होगा अगर आप बैचेस जो है वो चेंज करते हैं। if the variation among the batches is hard variation, not soft variation. So programmable automation जो है overall we can say that it is to economically produce a wide variety of low volume of products in small batches. So easily इसका एग्जांपल में आप कैट कैम सिस्टम दे सकते हैं, जो CNC मशीन्स है, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ओवरऑल अगर आप लिस्ट करें इनकी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की जो मेन फीचर्स हैं, तो सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस इज़ नॉर्मली कंट्रोल बाय अ प्रोग्राम। जनरल पर्पस इक्विपमेंट में हाई इन्वेस्टमेंट है बिकॉज ऑफ द CNC टेक्नोलॉजी। you will have lower production rates comparing to fixed automation. But on the other hand, you have flexibility to deal with the variation. It is suitable for batch production. Batch production means smaller volumes than fixed automation, but for many different parts. It is more flexible than fixed automation. Flexibility ज़्यादा ही होगी इसकी। डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर आपने यानी न्यू पार्ट की तरफ जाना हो तो फिर आपने सेटअप्स जो है वो चेंज करने होंगे। सो अगेन यू विल हैव टू स्टॉप द सिस्टम, यू विल डू द रिकॉन्फ़िगरेशन एंड देन फिर आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। सो लार्ज बैच साइजेस जो है वो फिर रखे जाते हैं इफ़ देयर इज़ हार्ड वेरिएशन इन बिटवीन टू बैचेस। सो नॉर्मली स्पीड आप सेक्रीफाइस कर लेते हैं। स्पीड मीन्स यानी जो प्रोडक्शन रेट्स हैं, प्रोडक्शन रेट्स जो है वो आप रिड्यूस कर लेते हैं कंपेयरिंग टू फिक्स्ड ऑटोमेशन, बट यू आर इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आप पार्ट वेरिएशन जो है वो ले आते हैं सिस्टम में। थर्ड सिनारियो में भी दैट ऑफ द flexible automation. So flexible automation भी soft automation ही है, as I said that it is an advanced form of programmable automation. So flexible automation जो है it is an extended form of programmable automation. और उसमें यही है कि जो equipments है और individual equipments जो है, यानी उसमें प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, लोडिंग और अनलोडिंग इक्विपमेंट और जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, अगर ये इंडिविजुअल इक्विपमेंट जो है वो आप कंप्यूटर कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करते हैं और आपस में इंटीग्रेट भी कर ले, तो वो आपका फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो जाता है। सो अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन system is capable of producing a variety of parts with virtually no time lost for changeovers from one part style to the next file. अब इसमें आप वो डिसएडवांटेज जो है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का वो कवर कर लेते हैं कि जो सॉफ्ट वेरिएशन और हार्ड वेरिएशन के रेफरेंस से है। तो सॉफ्ट वेरिएशन में सिर्फ ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज होता है, विच इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हार्ड वेरिएशन है तो उसमें फिर आपका प्रोसेस का सीक्वेंस जो है वो चेंज होता है। तो प्रोसेस सीक्वेंस अगर आपने चेंज करना हो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में, सो यू विल हैव टू स्टॉप द सिस्टम। बट अगर आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो है वो भी कंप्यूटर कंट्रोल है, तो देन यू कैन ईजिली चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस आल्सो। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था।
So there is no lost production time if you want to reprogram the system for the new part type. जो physical setup है वो आपके कम हो जाते हैं. So this is again an animated figure which shows the operation of flexible automation. Flexible automation में वही है कि आपका यानी जो process plan है that is shared through the upper level, यानी जो central management computer system room होता है जो जिसे आप host computer कहते हैं. So host computer से information जो है वो प्रोडक्शन लाइन में आपके इंडिविजुअल इक्विपमेंट भी होते हैं, आपके वर्क सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना. सो दैट प्रोसेस प्लान इज शेयर. प्रोसेस प्लान का मतलब है इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द इंडिविजुअल सेल्स, और फिर वर्क पार्ट जो है वो अकॉर्डिंगली automated guided vehicles pick the part from the storage facility according to the instructions. It places that on the प्रोडक्शन लाइन, और प्रोडक्शन लाइन में वो फिर पार्ट जो है वो प्रोसेस होके फाइनली दैट पार्ट इज़ अनलोडेड फ्रॉम दैट. ये स्टार्ट है ना. इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इट पिक्स द पार्ट, इट प्लेसेस द पार्ट ऑन द प्रोडक्शन लाइन, you know, and the production line then start processing the parts, you know, according to the information that will be given through the host computer, which is the process plan normally, you know. और वही process plan आखिर में end होके पार्ट जो है फिनिश पार्ट आपका पिक होगा एंड इट विल बी प्लेस्ड एज अ फिनिश्ड इन्वेंट्री इन द स्टोरेज फैसिलिटी. So the only difference between programmable automation and flexible automation is that if those individual equipments which are CNC machines, if they are integrated together, so it will form another strategy which is flexible automation. तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आपका यानी जो इक्विपमेंट है, जो लोडिंग और अनलोडिंग इक्विपमेंट है, जो कन्वेयर सिस्टम है और जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, वो तीनों कंप्यूटर कंट्रोल होंगे और आपस में इंटीग्रेटेड भी होंगे. सो ओवरऑल यही आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग or from one job to another job with no lost time between the jobs. Typical features अगर आप देखते हैं तो again high investment for not custom engineered जनरल पर्पस इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है ना. आई विल करेक्ट दिस, लेकिन आप करेक्ट कर क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ स्लाइड्स शेयर किए हुए हैं. सो जस्ट करेक्ट दिस. यू हैव हाई इन्वेस्टमेंट फॉर जनरल पर्पस इक्विपमेंट, और वो इसलिए वही जो मैंने आपको बताया कि CNC इक्विपमेंट होता है. यू हैव कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी चेंज ओवर जो है वो आपका टाइम बहुत ही कम होता है कंपेयरिंग टू प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन. और इसमें आपके जो प्रोडक्शन रेट्स हैं वो मीडियम है. मीडियम का मतलब ये है कि यानी 3 लेवल्स ही आपके हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या मीडियम होगी. सो कंपेयरिंग टू द अदर स्ट्रेटजीज, फिक्स्ड ऑटोमेशन या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो जो फिक्स्ड ऑटोमेशन है वो मैक्सिमम रेंज है उसकी, जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उसकी मिनिमम रेंज है तीनों में, और जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है उसकी मीडियम प्रोडक्शन रेट्स आ जाती है. बट इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी एज वेल. सो ओवरऑल यही है कि जो चेंज ओवर टाइम है बहुत ही कम होता है comparing to programmable automation. So you require less changeover time and allow continuous operation of equipment and product variation. एग्जाम्पल में फिर इंडिविजुअल इक्विपमेंट आप नहीं दे सकते, ज़ाहिर है फिर इंटीग्रेटेड फार्म ही होगा. तो इंटीग्रेटेड फार्म जो है वो या तो आपको सिस्टम लेवल पे मिल सकता है या सेल लेवल पे भी आपको मिल सकता है. सो मैन्युफैक्चरिंग सेल जो है इट इज़ इसको मैंने आपको कहा था कि अगर ऑटोमेटेड है और फुली इंटीग्रेटेड है तो उसको फिर हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल कहते हैं.
ठीक है ना. सो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेल लेवल पे भी आपके पास हो सकती है. इट कैन बी एट द सिस्टम लेवल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं. और जब हम एफएमएस की बात करते हैं तो उसमें फिर जो यानी ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम की हम बात करते हैं, सो दैट मस्ट आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना, जिसमें ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आपके पास आएंगी, ठीक है. सो देयर विल बी नो देन कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वेयर सिस्टम. वहाँ पे फिर आपका कन्वेयर सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा. अगर आप एफएमएस की बात करते हैं तो एफएमएस में आपने फिर एजीवीज टेक्नोलॉजी ही यूज़ करनी होती है. सो ये ओवरऑल लिस्टिंग है इसकी जो मेन आप कह लें पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए. It is extension of programmable automation. You have no time lost to change your high investment in general purpose equipment, ठीक है ना. ये कस्टम ये आप करेक्ट कर लें. You can get production of product mix, different products जो है वो easily आप बना सकेंगे product varieties के रेफरेंस से. It has the flexibility to deal with the design variation. प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो मीडियम रेंजेस में आ जाती है. प्रोग्रामिंग एंड सेटअप कैन बी परफॉर्म ऑफलाइन, ठीक है ना. ऑफलाइन आप कर सकते हैं. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू ऑल थ्री स्ट्रेटजीज. साइज एंड टूल चेंजेस कैपेबिलिटीज़ इसमें है. स्मॉल बैचेस जो है यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं. वहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में चूंकि आपने फिज़िकली जो सेटअप है वो चेंज करना होगा तो उसके लिए आपने सिस्टम को स्टॉप करना होगा. बट हेयर विदाउट स्टॉपिंग द सिस्टम यू कैन ईजिली स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टाइप टू अनदर प्रोडक्ट टाइप बिकॉज through the automated guided vehicles you can directly change the sequence of processes. जो वर्क पीसेस जिस पार्टिकुलर इक्विपमेंट की तरफ आप मूव करना चाहें यू कैन. सो स्मॉल बैचेस जो है वो यहाँ पे जस्टिफाइबल है. वर्क इन प्रोसेस जो है ज़ाहिर है वो आपकी रिड्यूस्ड हो जाएंगी और लीड टाइम जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेटअप टाइम्स. यानी यहाँ पे जो चेंज ओवर टाइम्स है वो आप आलमोस्ट जो है यानी आलमोस्ट नील तो नहीं कर सकते बट यू bring those change over times at the minimum level, ठीक है ना. सो लीड टाइम जो है बेसिकली इट इज़ द टाइम इन बिटवीन द receipt of the order and delivery of the customer, delivery to the customer of that particular product. So lead time is basically the total manufacturing time of the product. Whenever a company receive an order from the customer, from that very time till the delivery of the final product to the customer, it is known as lead time या manufacturing lead time कहते हैं. So lead time जो है it can be significantly reduced when you are working in the flexible type of automation. तो इन तीनों को अगर अब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास तीन सिनारियोज हैं. जॉब शॉप प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है और मास प्रोडक्शन है. और उनके लिए जो स्ट्रेटजीज़ आप अडाप्ट कर सकते हैं या तो फिक्स्ड ऑटोमेशन या प्रोग्रामेबल या फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कर सकते हैं. और ये स्ट्रेटजीज़ जो है नॉर्मली इनको अगर आप देखते हैं तो ये स्ट्रेटजीज़ आप बनाते हैं दो पैरामीटर्स के रेफरेंस से, प्रोडक्ट वेरिएशंस और प्रोडक्शन क्वांटिटीज़. यानी प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ मीन्स या production quantity means the total number of products that will be produced by a setup, and product variety means the total types of product that will be produced by a company. Production quantity जो है वो तभी आपकी ज़्यादा हो सकती है अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो कम से कम हो, बिकॉज you will not need any change over times, any setup times.
continuously you will be manufacturing the product. So continuous manufacturing जो है वो जो मास प्रोडक्शन है उसमें ही आपको मिलती है, ठीक है ना। ये कैटेगराइजेशन बाद में हम पढ़ेंगे या शायद आपने पढ़ा भी हो मैनेजमेंट में कि जो मास प्रोडक्शन है उसकी नंबर अगर आप देखें, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज़ मोर देन, ये हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो अगर 100,000 अबव प्रोडक्शन है तो उसको मास प्रोडक्शन कहते हैं। इफ़ इट इज़ इन बिटवीन 100 to 10,000 तो उसको बैच प्रोडक्शन कहा जाता है। और अगर 100 यूनिट्स पर ईयर से कम एक कंपनी बनाती हो तो वो फिर जॉब शॉप प्रोडक्शन होती है। तो प्रोडक्ट वेरिएशन की अगर आप बात करते हैं तो फिक्स्ड ऑटोमेशन में एक ही टाइप का, यानी द प्रोडक्ट वेराइटी इज़ ऑलमोस्ट नील, ठीक है ना, एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। एंड प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ आर एट बल्क। फिर जो बैच प्रोडक्शन है, तो बैच प्रोडक्शन में आपकी वेराइटीज़ जो है वो एक से ज़्यादा हो जाती है, बट इट इज़ नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो नहीं होती, दो या तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ही एक फैक्ट्री जो है वो बना सकेगी। सो प्रोडक्ट वेरिएशन इज़ 2 3 और मे बी 4, लेकिन फिर उसका जो क्वांटिटीज़ है वो कम हो जाती है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेटअप टाइम्स। यू विल फ्रीक्वेंटली स्टॉप द सिस्टम एंड स्टार्ट द सिस्टम। सो सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो आपका सेट ओवर्स में ही, चेंज ओवर्स में ही चला जाता है। तो इट बेसिकली प्रोडक्ट वेरिएशन डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोडक्शन क्वांटिटी। और फिर प्रोग्रामेबल, नॉट प्रोग्रामेबल, जो जॉब शॉप प्रोडक्शन है, जॉब शॉप प्रोडक्शन में आपकी वेरिएशन जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। बिकॉज फॉर अ प्रोजेक्ट शॉप, यानी जॉब शॉप मैन्युफैक्चरर को पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनाएंगे, ठीक है ना। सो दे वेट फॉर द कस्टमर, कस्टमर विल कम, और वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ही होती है, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर्स ही होते हैं, ठीक है ना। सो यू नेवर नो दैट what will be the incoming order. अब फॉर श्योर अगर मास प्रोडक्शन है तो उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट मे बी द फिक्स टाइप ऑफ ऑटोमेशन। बाकी अब दो रह जाती है, बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन और जॉब शॉप में। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज़ फॉर बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन, नॉट जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप में आपको पता ही नहीं होता कि क्या आपने करना होगा, ठीक है ना। सो इट इज़ यूजलेस टू यूज़ the type of setup in which all the equipments will be integrated together, और आप जो है ऑर्डर का इंतज़ार करें, यू नो। सो द ओनली बेस्ट सिनारियोज that can best suit the flexible type of automation is batch type of production, because in batch type of production you know that what will be the total number of batches that will be produced, and just with the click of or with the change of program you can change from one scenario to another scenario, you know। So flexible automation जो है वो बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और जो मास जो जॉब शॉप प्रोडक्शन है उसके लिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की स्ट्रेटेजी ही सूटेबल है। कि ऑफ कोर्स सिस्टम जो है वो आपका फ्लेक्सिबल ना हो बेशक, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यू विल रिसीव वैरायटी ऑफ डिफरेंट, you can say, orders in which you will need flexible equipment so that it is capable of performing all those operations which will be required on the next part. So इसमें dedicated equipment भी आप use नहीं कर सकते, programmable equipment वो ज़्यादा बेहतर होगा। This is just a figure which shows the migration strategies of that particular scenario। अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 की बात करते हैं तो मैनुअल प्रोडक्शन से ही आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ था इन द ओल्ड एजेस। और जो इक्विपमेंट था दैट वुड बी मैनुअली ऑपरेटेड, जो
ट्रांसपोर्टेशन स्कीम थी दैट वुड बी मैनुअल, जो लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन थे दैट वुड बी मैनुअल, ठीक है ना. सो दिस वाज फेज वन ऑफ द manufacturing industries in which all the activities and processes would be performed with human operators. फिर नेक्स्ट फेज आपका आया, और ये मैनुअल प्रोडक्शन का सिस्टम जो था ये वन स्टेशन सेल का कॉन्सेप्ट ही था, यानी इंडिविजुअल सेल में ही काम होता था. ईच इक्विपमेंट वुड बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली. फिर ऑटोमेटेड प्रोडक्शन का जब फेज़ आया, विच इज़ फेज़ टू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कॉन्सेप्ट वही था वन स्टेशन सेल का, लेकिन जो इक्विपमेंट था वो आपका ऑटोमेट हो गया, ठीक है ना. सो स्टिल जो ट्रांसपोर्टेशन स्कीम थी और जो लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन थे देवर मैनुअल. फिर थर्ड स्टेप में आपकी जो आजकल जो इंडस्ट्रीज़ आप देखते हैं कि जिसमें आपका जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटेड होता है, जो इक्विपमेंट है वो भी ऑटोमेटेड होता है, और जो आपका लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन है वो भी ऑटोमेटेड हो सकता है. सो दिस इज़ फेज थ्री ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इन विच जो वन स्टेशन सेल का कॉन्सेप्ट था वो कनेक्टेड स्टेशंस में आपका हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेल्स भी आपस में फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो यू कैन हैव नाउ ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन. ओवरऑल जब आप लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन जो है वो अगर आप देखें तो नॉर्मली मैंने आपको कहा था कि 3 लेवल्स आपके पास हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप मशीन से स्टार्ट लेते हैं तो इंडिविजुअली यानी जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो डिवाइस लेवल ही होता है. यानी अगर एक मशीन को आपने ऑटोमेट करना हो इंडिविजुअल स्लाइड को, यानी फॉर एग्जांपल स्पिंडल को आपने ऑन ऑफ करना हो तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपने सेंसर और एक्चुएटर जो है वो यूज़ करना होगा. सो डिवाइस लेवल से आपकी जो ऑटोमेशन स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट हो जाती है. सो यू हैव डिवाइस लेवल ऑटोमेशन जिसमें आप एक्चुएटर्स, सेंसर्स, जो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है वो आप यूज़ करके किसी भी मशीन को फुल फ्लेज ऑटोमेट कर सकते हैं, या उसके बाज़ एक्शंस जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं. फिर आपकी मशीन लेवल आ जाती है. मशीन लेवल में यानी ये CNC मशीन जो है, सो CNC मशीन टूल्स एंड सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट लाइक इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी फुल फ्लेज इक्विपमेंट का अगर आपका कॉन्सेप्ट है, यानी पूरी की पूरी इक्विपमेंट जो है वो अगर आप कंप्यूटर कंट्रोल के थ्रू ऑटोमेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो वो फिर मशीन लेवल ऑटोमेशन आ जाती है. सो एक्टिविटी लेवल वो डिवाइस लेवल है. फिर ऑपरेशनल लेवल यानी एक मशीन के पूरे ऑपरेशंस अगर आपके पास ऑटोमेटेड हो, जो कि CNC मशीन्स है. फिर आपका प्रोसेस लेवल आ जाता है. प्रोसेस लेवल जो है वो सेल और सिस्टम लेवल होता है, ठीक है ना. यानी यही मशीन लेवल अगर आपस में आप इंटीग्रेट कर दें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेल बन जाता है. और फिर इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग सेल्स को अगर आप इंटीग्रेट कर दे तो फिर वो आपका सिस्टम लेवल बन जाता है जिसे आप प्लांट लेवल कहते हैं, ठीक है ना. सो यू कैन हैव सेल और सिस्टम लेवल विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेल या सिस्टम. यू कैन हैव प्लांट लेवल जो प्रोडक्शन सिस्टम लेवल पे आप करते हैं. यू कैन हैव एंटरप्राइज लेवल. इंटरप्राइज लेवल वही है जो सिम है, ठीक है ना. सो प्लांट लेवल की अगर आप बात करते हैं तो इट इज़ FMS. इंटरप्राइज लेवल की आप बात करते हैं तो इट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सिम लेवल. उस इसको कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, CIS. तो ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है ये लेवल्स बताए गए हैं. डिवाइस लेवल्स, ठीक है ना. मशीन लेवल, इंडिविजुअल मशीन. सेल और सिस्टम लेवल की जब आप बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या ग्रुप ऑफ मशीन जिसे हम कहते हैं. प्लांट लेवल की जब आप बात करते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम की हम बात करते हैं. और इंटरप्राइज लेवल की जब आप बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग ऑफ द बिजनेस फंक्शन आल्सो, ठीक है. सो अगर बिजनेस फंक्शन भी आप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं तो वो फिर आपका कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है.
बाज़ बुक्स में इन दोनों को मर्ज किया गया है। ये कैटेगराइजेशन आपको मिलती है, यानी डिवाइस लेवल जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स जिसकी मैंने बात की, फिर कंट्रोल लेवल यानी मशीन लेवल पे, फिर एम ई एस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम लेवल है, ठीक है ना। और फिर जो कॉरपोरेट लेवल है उसको ईआरपी लेवल भी कहते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो दैट्स इट ओवरऑल। अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द कैड एंड कैम सिस्टम्स, ठीक है ना। सो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यानी जो अदर डायरेक्शंस हैं, एक तो फैक्ट्री के रेफरेंस है और एक जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम के। जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स again. Objective of automating the manufacturing support system is to reduce the manual and clerical effort, integrates the computer aided design with the CAM section, और सिम जो है वो कैट कैम ही को कवर करता है, ठीक है ना। सो बिजनेस फंक्शन को भी अगर आप यानी इंटीग्रेट करते हैं तो आपका सिम बन जाता है। रीजंस एक टॉपिक है बुक में ग्रोअर की। तो रीजंस तो आप बहुत से दे सकते हैं। सो हियर आर सम लिस्ट ऑफ सम ऑफ द रीजंस दैट व्हाई यू वन शुड गो फॉर द ऑटोमेशन, ठीक है ना। सो इंक्रीज यू कैन इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो यू कैन डिबेट ऑन दैट। मैनुअल लेबर का बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन सिस्टम के रेफरेंस से, कि अगर आप ऑटोमेशन लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लेबर जो है वो आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इज़ देयर अ प्लेस फॉर मैनुअल लेबर इन द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम? सो ऑफ कोर्स द आंसर इज़ यस। जितनी भी आप ऑटोमेशन ले आए, स्टिल यू विल नीड द मैनुअल वर्क फोर्स टू ऑपरेट दैट सिस्टम, ठीक है ना। सो मैनुअल लेबर इन द फैक्ट्री ऑपरेशंस जितने भी है उसके लिए आपके पास लेबर का होना ज़रूरी है। सब मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, जो इनिशियल डेटा कलेक्शन है उसके के लिए मैनुअल फोर्स जो है वो उसका ज़रूरी है। तो उसके रेफरेंस से जो टास्क है यानी मैनुअल लेबर इन फैक्ट्री ऑपरेशन, जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स, है ना। वन इज़ मैनुअल लेबर जस्टिफाइड, लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो ये दो तीन स्लाइड्स हैं, ये आप खुद ही पढ़ लें। और ठीक है, दैट्स इट।